Okay, good morning students. So we were discussing gravitation and so far we have discussed what is gravity, and gravitation means difference between gravity and gravitation. Gravitation is the force of attraction between any two objects in the whole universe, and gravity is the force of attraction between Earth and any object. And the force which is responsible for an object to move around a circular path is called the centripetal force, and the centripetal force required by the planets to move around the sun is given by the gravitational force of the sun to the planet. In the same way, the centripetal force required by the satellite to move around the planets is given by the gravitational force of the planet to the satellites to move around the planets. And what is universal law of gravitation? According to universal law of gravitation, the force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And the expression for that is F is equal to G m1 m2 upon r square. F is equal to G m1 m2 upon r square, where G is called the gravitational constant and m1 m2 are the masses, r is the distance between two objects. And the value of G is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. And what is the importance of universal law of gravitation? So far we did this article, and today we'll discuss free fall, the acceleration due to gravity, the relation between small g and capital G. Small g is called the acceleration due to gravity, and capital G, you know that, gravitational constant, and what is the relation between them, and what is the difference between them, difference between small g and capital G. Then and how the equation of motion which we have studied in chapter first be converted into or can be used in this chapter to find the motion of a freely falling object, and how to find the force between any two objects using universal law of gravitation. We will do some numerical on that. So let's begin with free fall. So this is an object and I am holding this pen. It is not a freely falling object. When I drop this means no force is acting on the object except the force of gravity and some frictional force of air. अगर उसको भी neglect कर दे तो only the gravitational force. So when the body falls freely under action of gravity only, that force that the body is said to be under free fall. जैसे यहाँ से मैंने इसको छोड़ा तो अर्थ पे पहुँचने से पहले दिस बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फ्री फॉल. इस फ्री फॉल की स्टेट में होगी जब तक ग्राउंड को हिट नहीं करती है. ठीक है, तो यहाँ से जैसे मैंने इसको छोड़ा ये फ्रीली फॉलिंग, जैसे इसको छोड़ेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अच्छा देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, सो व्हाट विल सी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी. जैसे इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो ये धीरे धीरे ऐसे अर्थ की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी धीरे धीरे. और आप ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर फेंकता हूँ मैं, नीचे से ऊपर फेंकने के लिए तो फोर्स लगेगी. इस पर मैंने फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और एक पोजिशन पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है जहाँ से वो ऑब्जेक्ट वापस आने शुरू होता है. तो इसका मतलब है जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा, ऑफ कोर्स वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा ये फाइंड करते हैं. एंड दैट फोर्स, दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो देखो, वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है. आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है. उसमें क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. यानी जितना ज्यादा फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी, और मास जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी कम होगी. तो वो जो एक्सेलरेशन था ए, जिसको हम बोलते थे इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो जो ए था वो एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन द फोर्स एंड मास, दो चीजों पर डिपेंड करता है. बट हेयर इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो, ऑब्जेक्ट कितना भी हल्का या भारी क्यों ना हो, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा
वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट अस प्रूव दैट कि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 9.8। और जब नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, पर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है, और नीचे यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। कितनी होगी? नीचे आते हुए 9.8 और ऊपर जाते हुए -9.8। अब हम दोनों में रिलेशन भी प्रूव हो जाएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में, और इसकी वैल्यू भी निकाल देंगे। सपोज ये अर्थ है और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ का मास कैपिटल M ले लेते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट है उसके अर्थ के ऊपर, सपोज अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 kg है, उसको हम स्मॉल m ले लेते हैं, स्मॉल m 1 kg 2 kg जितना भी आप मास लेना चाहो, कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, और ये मास ऑफ अर्थ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या अर्थ से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लेंगे, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ से यहाँ, और रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट होता है 6400 किलोमीटर ले लेते हैं, ये r डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। सो f इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी से, यहाँ पे g तो पता ही आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m मास ऑफ द अर्थ है, और ये स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है व्हिच इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। वो इस केस में हम सेंटर और रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल लेते हैं। और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। F is equal to ma, and in case of freely falling body, a is g, means acceleration is acceleration due to gravity. तो हम a की जगह g ले सकते हैं, F is equal to mg हो जाएगा। अब फोर्स इसके भी इक्वल है और फोर्स इसके भी इक्वल है, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो mg is equal to gm1m2 upon r square। m से m कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ द कैंसिल हो गया, और g is equal to gm upon r square। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये रिलेशन है स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन, g is equal to gm upon r square। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये g जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट होता है, अब मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। जब g जो है इन तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो फिर g भी कांस्टेंट आएगा। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ gm एंड r। g की वैल्यू 6.7 10 to the power -11, मास ऑफ अर्थ ये होता है 6 × 10 to the power 24 kg, रेडियस 6.4 × 10 to the power 6 और इसका स्क्वायर। इसको एज इट इज, ये 6 इसके साथ लिख करके ये जीरोस को कंबाइन कर लेंगे, 24 में से 11 के 13 जीरो आ जाएंगे। इसका स्क्वायर है तो 6.4 × 6.4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 जीरो हो जाएंगे। ये 13 जीरो 12 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो बचेगी, तो ये 6.7 × 6 × 10 60, और ये 6.4 6.4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें g हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव 9.8, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू नेगेटिव 9.8 लेनी है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते थे फर्स्ट चैप्टर में, देखो वो ये थी, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square and v square minus u square is equal to 2as, ये यूज करते थे। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो s है वहाँ पे लीनियर डिस्टेंस को s बोलते थे, यहाँ पे डिस्टेंस वर्टिकल होगा, तो s की जगह h ले लेंगे, और a जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a की जगह g आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बन जाएगी, v is equal to u plus gt। अच्छा, g आपको पहले से पता है, वहां पे एक्सेलरेशन निकालनी पड़ती थी अगर नहीं दी होती थी, यहाँ पे g पहले से ही पता है, यानी 4 में से 3 चीजें पहले से ही पता होगी आपको। h is equal to ut plus half gt square, s h हो गया और a तो g हो गया, और v square minus u square equal to 2gh, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। ऐसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। और ये तो है ही, अभी आपने रिलेशन निकाला है, f is equal to, ये यूनिवर्सल लॉ है m1m2 upon r square, इससे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, और ये रिलेशन है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में, g is equal to gm upon r square।
अब देखो, अब हम दोनों में डिफरेंस भी देखते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है? रिलेशन अभी आपने देखा, अब डिफरेंस देखो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो वो ऐसे करना है आपको। और अगर आपको जी की वैल्यू निकाल के दिखाना है तो ये वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। और अगर आपको जी और जी में डिफरेंस बताना तो ऐसे हो जाएंगे, पॉइंट्स बना के 4 डिफरेंस आएंगे, 1 2 3 4। पहला, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू 9.8 तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट वैरीज विद लैटिट्यूड, मींस आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे या अर्थ में अंदर की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, एग्जैक्टली कम होती रहती है। जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कहीं भी पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। और जी की वैल्यू, जी कैन बी 0, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 0 होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो सकती है। और वैसे वैसे जैसे मैंने बताया कि हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और एक हाइट ऐसी भी आएगी जहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जहाँ पे 0 ग्रेविटी होती है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये 4 डिफरेंस आएंगे, जिससे हम जी और जी में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और जी और जी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब है आपकी बुक में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 10.1। इसमें द मास ऑफ अर्थ, एग्जाम्पल 10.1 में द मास ऑफ अर्थ इज गिवन, द मास ऑफ मून इज ऑल्सो गिवन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन। सो यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये फार्मूला आपको पता है, F = Gm1/r²। यहाँ पे कैपिटल M जिसका मास ज्यादा हो उसको कैपिटल M, जिसका मास कम हो उसको स्मॉल m ले लो। M1 M2 ले सकते हो। ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ मून हो गया, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। R हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ में होगा, R डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसे बुक में आपके D दिया होगा, तो D और R का मतलब सेम है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो G की वैल्यू 6.7 × 10⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, ये मास ऑफ मून है, और ये डिस्टेंस है 3.84 × 10⁸ का स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले जीरोस को कंबाइन करते हैं। ये अलग एज इट इज लिखिए, 6 को एज इट इज लिखिए, 7.4 को एज इट इज। ये 46 में से 11 चले जाएंगे माइनस में, तो 35 जीरोस आ गए। नीचे 3.84 का स्क्वायर है तो 2 बार आ गया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 16 जीरो आ जाएंगे। अब 35 में 16 जीरो चले जाएंगे तो 19 जीरो रह जाएंगे, और ये एज इट इज। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20.1 × 10⁻19 आएगा, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.01 × 10⁻20 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून। सिमिलरली आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 है, वहां पे भी सेम न्यूमेरिकल है, बिल्कुल वो भी कर लेते हैं। इट्स यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ और सन के बीच में। तो फार्मूला वही है, F = Gm1/r²। G तो पता ही है, M मास ऑफ सन है यहाँ पे, और स्मॉल m मास ऑफ अर्थ है, R उनके बीच का डिस्टेंस है। R रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, अगर R से कंफ्यूजन होता है तो आप D भी ले सकते हो, d²। तो ये वैल्यू पुट करेंगे 6.7 × 10⁻11, सन का मास 2 × 10⁻30, अर्थ का पता ही है आपको 6 × 10⁻24, और ये डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। तो उसी तरह से जीरोस को अलग करेंगे, ये 6.7, ये 2 और ये 6, ये 54 जीरोस होंगे, 54 में से 11 की 43 जीरो रह जाएगी। और यहाँ पे 1.5 को 2 बार करेंगे, ये 1.5 1.8 और 10⁻22, 43 में से 20 की 21 आ जाएंगी, और इसको हमने 6 × 12 6.7 ऐसे आएगा। तो ये 35.7 × 10⁻21 या फिर 3.57 × 10⁻22 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सन। So this is how we can calculate the force of attraction between any two object। ऐसे दो हमने निकाल के बताया। जनरली जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी सब्सटैंशियल होती है जब दो बड़े ऑब्जेक्ट हो, लाइक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो। आमतौर पर अगर आप ये 1 ले लेंगे, मान लो ये कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए वी कैन नॉट सी द एक्सेलरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो उसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम मास और वेट में डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट।
आज के लिए इतना ही।